Hello, my dear friends. How are you? Today we will discuss about the oxidation states of group number 17. Oxidation states of group number 17. As you know that the electronic configuration of group number 17 is Ns2Np7. So total valence electrons are 7. So halogen can donate 7 electrons. So possible oxidation states are plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. And to complete octet, halogens can accept 1 electron. So Ns2Np6 completed. So it also show minus 1 oxidation state. So these are not observed oxidation state according to theory, possible oxidation state. As I told you earlier, if group number even, then observed oxidation states are even. If group is odd, then observed oxidation states are odd. This can be explained based on stability, and all elements shows minus 1 because group number 17 is a highest electronegative group. So all elements have tendency to accept 1 electron. And another one, by accepting 1 electron, they can attain the electronic configuration like inert gas. So each and every element try to acquire the electronic configuration like inert gas. So minus 1 is the common observed oxidation state in group number 17. So out of these 8 oxidation states, practically observed oxidation states are minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. And in further discussion, plus 6 and plus 4 also observed in oxo acids of halogen. But in normal compound, this plus minus 1, minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 observed. Remember this. Highest oxidation state, you know the formula, group number minus 10 plus 7 is the highest oxidation state. Another thing, fluorine is highest electronegative element in periodic table, so fluorine never show positive oxidation state. So oxidation state in any condition, fluorine oxidation state is always minus 1. Remember. Now let us discuss about chlorine, bromine and iodine. This chlorine, bromine and iodine shows higher oxidation state, and higher oxidation state possible due to presence of d orbital also. Higher oxidation state are shown in their compounds like oxides of this halogen, oxo acids of this halogen, or their compound with higher electronegative elements like a fluorine of same group and oxygen of previous group. Because in periodic table fluorine is the highest electronegative and second number electronegative element is fluorine. So in presence of these two elements, chlorine, bromine and iodine shows positive oxidation state. As I told you earlier, plus 4 and plus 6 oxidation state shown by chlorine and bromine in their oxo acids. So in one table, I tried to explain the observed oxidation state. Fluorine only minus 1, but in chlorine, bromine and iodine, all these 5 oxidation states are observed: minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. This is all about oxidation state. It is very easy question, so prepare it today. Another question is, explain oxidizing properties. Oxidizing agent properties of group number 17. So one thing is clear, all elements of group number 17 undergo reduction
and they oxidize other elements, so they are the oxidizing agent, other compound. So all elements of group number 17 are not a mild, strong oxidizing agents. How they form halide with metal and non-metal? उसमें हेलोजन का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो इसमें Na का +1, क्लोरीन का -1. So sodium react with a chlorine gas, it gives NaCl. सोडियम का 0 में से +1 हो जाता है, इंक्रीज बाय 1, और क्लोरीन का 0 में से -1 हो जाता है, डिक्रीज बाय 1. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl by reaction with a sodium and chlorine gas, sodium undergo oxidation, chlorine undergo reduction. So chlorine acts as a oxidizing agent क्योंकि उसने सोडियम का ऑक्सीडेशन किया. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है. तो ये फ्लोरीन इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन द क्लोरीन, देन द ब्रोमीन. क्लोरीन इज हायर देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन इज हायर देन द आयोडीन डाउन द ग्रुप. तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इन ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये स्टार करके मैंने लिखा है, बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है और बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक पॉइंट है. आप इसको 3-4 बार पढ़िएगा, 1-2 बार लिख के प्रिपेयर कीजिएगा. तो सी हियर, रीड इट. स्मॉलर हैलोजेंस ऑक्सीडाइजेस बिगर हैलोजन. अब ये इंटर हैलोजन की बात आ गई. स्मॉलर हैलोजन ऑक्सीडाइजेस बिगर हैलोजन. यहाँ से भी समझ में आ रहा है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द क्लोरीन. तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ खुद का रिडक्शन करेगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करेगा. क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आप ले लो तो क्लोरीन इज द मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द ब्रोमीन. अगर क्लोरीन और ब्रोमीन साथ में रहेंगे तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करेगा. उसी तरह आप ब्रोमीन और आयोडीन में सोच सकते हो. और मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. स्मॉलर हैलोजन ऑक्सीडाइजेस बिगर हैलोजन फ्रॉम इट्स सोल्ट. अब आप स्मॉलर हैलोजन ले लो, प्योर फ्लोरीन. बिगर हैलोजन कोई भी ले लो, सोल्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये आप ले सकते हो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 ऑल्सो. तो क्या हुआ कि ये X अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि ये -1 to 0 इंक्रीज बाय 1. अब फ्लोरीन का 0 to -1 डिक्रीज बाय 1. तो इसमें क्या हुआ, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ और उसके आगे के जो हैलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसका ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है. और एक बात फ्लोरीन की जो मैंने कॉम्पिटिटिव बुक में से यहाँ लिखी है कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, अदरवाइज फ्लोरीन गैस में ही चाहिए एलिमेंट. फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज एनीबडी, आइदर फ्लोरीन इज इन अ सॉलिड स्टेट और इन अ लिक्विड स्टेट और इन एनी सॉल्यूशन, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब हम फ्लोरीन को भूल जाते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं मेन. तो दूसरे हेलोजन है ब्रोमीन आयोडीन. तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, चलो हमने क्लोरीन ले लिया तो वो ऑक्सीडाइज करेंगे, क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा ब्रोमीन और आयोडीन को सिर्फ. ठीक है, इसको बार बार पढ़ते रहो. स्मॉलर हैलोजन ऑक्सीडाइजेस बिगर हैलोजन, स्मॉलर हैलोजन ऑक्सीडाइजेस बिगर हैलोजन. सो रिवर्स यू कैन से बिगर हैलोजन रिड्यूसेस स्मॉलर हैलोजन. ठीक है, ये देख लो. ब्रोमीन, यहाँ मैंने X का यूज़ नहीं किया है कि अगर आप ब्रोमीन मेन लेते हो तो सिर्फ आयोडीन ही बचता है, तो ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली आयोडीन. तो और मैं ये बोल सकता हूँ फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन आयोडीन,
bromine can oxidize only iodine in their salts, remember. Okay. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी E0 रिडक्शन से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो in electrochemistry there is one relation. More E0 reduction value, it is decided practically by using standard electrodes. More E0 reduction like x2 converted to 2x minus 0 to minus 1 decreased by 1. More tendency to undergo reduction. More reduction potential, more tendency to undergo reduction. So more tendency to act as a oxidizing agent. खुद की रिडक्शन करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. बार बार सुनिएगा इसको. अब ग्रुप पीरियोडिसिटी उसकी देखते हैं. तो डाउन द ग्रुप आगे भी हमने डिस्कशन किया है. तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंटेंट में हम देखना चाहे तो डाउन द ग्रुप E0 रिडक्शन डिक्रीजेस, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीजेस. फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक E0 रिडक्शन स्लोली कम होता जा रहा है. So fluorine is the strong oxidizing agent than the chlorine. Chlorine is stronger than the bromine. Bromine is stronger than the iodine. ठीक है. दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन आता है कि E0 रिडक्शन कैसे डिसाइड करते हैं. तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. उसके लिए कुछ उसके डेटा हमारे पास चाहिए. तो E0 रिडक्शन of any halogen X2, F2, Cl2, Br2, I2, it decided based on 3 data. पहले तो हमें उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए XX, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए. तो सीधा रिलेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसलिए मैं दे देता हूं, आप लोगों को जरा इसको ध्यान में रखना है. जो भी हेलोजन का लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो तो वो फ्लोरीन का बहुत है. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो तो फ्लोरीन की हाईएस्ट नहीं है, हालांकि क्लोरीन की है लेकिन कम नहीं है. और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जो फ्लोरीन की ज़्यादा है तो उसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा. इसका एक फॉर्मूला आता है जो इनऑर्गेनिक है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. उसमें आप वैल्यू रखते हैं तो आपको E0 रिडक्शन डायरेक्ट मिल जाता है. तो फ्लोरीन का यहाँ पे हाईएस्ट मिल रहा है तो फ्लोरीन की खुद की टेंडेंसी हाईएस्ट है रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करने की. सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मैंने यहाँ रिएक्शन से दिखाया कि पहले जो हेलोजन है दैट हेलोजन इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटॉमिक फॉर्म. दिस इज अ मोलिकुलर फॉर्म टू एटॉमिक फॉर्म. तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. यहाँ मैंने क्लियर लिखा है. This by electron gain enthalpy converted into X minus by gaining one electron from outside, and with water it converted into aqueous solution. तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके. सो 3 एंथैल्पी आती है तब ये X माइनस एक्वियस रिएक्शन में जाता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्योंकि ये X2 है, एक नहीं है. तो जितनी आती है वो तो एक की अगर हमें गिननी है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. यहाँ से एक हो जाता है ये, हालांकि हाँ ये 1/2 लिया हुआ है तो डिवाइड बाई 2. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी तीनों को हम जोड़ देंगे तो एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से हमें ये E0 रिडक्शन मिलेगा. आगे चलते हैं. The oxidizing property can be explained by reaction of X2 with H2O. Okay. So fluorine can oxidize water to oxygen. जो हैलोजन वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी करेगा, देर लगाएगा. तो फ्लोरीन डायरेक्टली कन्वर्ट वाटर टू ऑक्सीजन. सो यहाँ -2 है ऑक्सीजन का तो यहाँ 0 हो जाता है, इंक्रीज बाई 2.
So fluorine converted to F minus, it decrease. So here water, और आप क्लासिकल डेफिनेशन भी देखें तो वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये एक बात। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि क्लोरीन और ब्रोमीन, ये फ्लोरीन का खत्म हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन व्हेन रिएक्ट विथ अ वाटर तो ये दो चीजें बनाते हैं, तो हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड। ये हालांकि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ दिया है कि एनी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली क्लोरीन ब्रोमीन, सीधा सब हेलोजन लाइन में ले रहा हूं। फ्लोरीन की बात कर दी, क्लोरीन ब्रोमीन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट O2 बनाता है। तो फ्लोरीन 0 to -1 डिक्रीज बाय 1 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और वाटर -2 to 0 इंक्रीज बाय 2। ठीक है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक और हाइपोहेलस एसिड। अगर यहाँ क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड। अब इसको देखें जरा, ये 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हाइलोजन का -1 और यहाँ पे ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से और ब्रोमीन से, तो हेलोजन का आएगा +1। तो वही हेलोजन 0 to -1 डिक्रीज बाय 1, वही हेलोजन 0 to +1 इंक्रीज बाय 1। तो ये रिएक्शन हुआ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें 0 to -1 यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, और 0 to +1 हेलोजन हाइड्रोहेलिक एसिड बना के उसका रिडक्शन करता है, हेलोजन हाइपोहेलस एसिड बना के खुद का ऑक्सीडेशन करता है। तो ये जब प्रॉपर्टी कम होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो हमें ऐसा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। अब हम थर्ड डिस्कशन करेंगे, और थर्ड है वो है आयोडीन। सो आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज वाटर, क्योंकि वो है वीकेस्ट इन द ग्रुप वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट आयोडीन माइनस is oxidized to I2 in presence of O2। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, लेकिन आयोडीन सोल्ट जो है I- इज ऑक्सीडाइज टू I2 विथ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन का -1, तो यहाँ पे 0, -1 to 0 इंक्रीज बाय, तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो आयोडीन, ये इससे ये पता चलता है कि आयोडीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यहाँ उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे ये I- रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो ये पूरा वाटर के साथ मैंने दिखा दिया, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं आता है, नॉट ऑक्सीडाइज वाटर, तो ये सीधा ऑक्सीजन के साथ I- इन एनी रिएक्शन कन्वर्टेड टू I2। लिख के प्रिपेयर कीजिएगा। सो इट इज रिवर्स विथ रिस्पेक्ट टू F। अगर हम यहाँ पे F ले लेते तो क्या होता, सोचो, आगे चले जाओ। तो ये रिएक्शन जो है इस तरफ नहीं जाता, ऐसे जाता। अब इसको एक बार देख लो, वाटर का फ्लोरीन ऑक्सीडेशन करके O2 बना रहा है, यहाँ पे O2 हाइड्रो आयोडिक एसिड का आयोडीन में कन्वर्ट करके वाटर बना रहा है। ठीक है, अगर यहां से आप फ्लोरीन ले लेते हो, यहाँ F2, ये F2 ले लेते हो, तो ये रिएक्शन इस तरफ जाएगा, ये F2 2H2O is converted to O2 and 4HF, ऐसा रिएक्शन चला जाता है। तो हम कहते हैं कि F2 ने वाटर का ऑक्सीडेशन किया। अब आयोडीन लेते हो तो यही रिएक्शन ऐसे हो जाता है, देखो O2 यहाँ पे ले लो आयोडीन, आयोडीन, और ये ऐसे जाता है, तो यहाँ आयोडीन कन्वर्टेड टू यहाँ I2 एंड O2 कन्वर्टेड टू H2, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रो आयोडिक का
तो ऐसे थोड़ा समझने की ट्राई करना। अब मैं आज के लास्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ और वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जैसे हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि क्यों फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो 3 रीज़न है। एक तो है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा रीज़न है स्मॉलेस्ट साइज इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है, और थर्ड रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। हालांकि आपको पता है पी ब्लॉक में हर एक ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट इज डिवॉइड ऑफ डी ऑर्बिटल। अब इसका एनोमलस बिहेवियर देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी बात उसका E0 रिडक्शन, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही हायर है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हायर है, जो समझ में नहीं आता है ग्रुप ट्रेंड में। हालांकि हम ग्रुप ट्रेंड में दिखाते हैं कि फ्लोरीन का ये सब हाईएस्ट है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हाईएस्ट आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हाईएस्ट आ रहा है। ये एनोमलस बिहेवियर है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कोवेलेंट रेडियस, हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे लोअर आ रहा है। ग्रुप ट्रेंड में हम बोलते हैं कि ये लोअर, बाद में हायर हायर, तो जितना उसका आना चाहिए इससे बहुत कम आ रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो ये 3 रीज़न हम दिखा देते हैं कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है, स्मॉल साइज है इसलिए हो रहा है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है इसीलिए हो रहा है। अब थर्ड एनोमलस बिहेवियर देखते हैं कि फ्लोरीन, हम आगे जाके जो है वो हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स वी विल डिस्कस। तो in that oxo acid we will say that fluorine can form only one oxo acid while other halogen can form more than one oxo acid. Chlorine 3-4 oxo acid, bromine 2 oxo acids, iodine, like that, okay। तो इसका रीज़न एक हम दे सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है ऑक्सो एसिड का, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फ्लोरीन कैन फॉर्म वन ऑक्सो एसिड ओनली। और लास्ट, hydrogen fluoride is a liquid while all chloride, bromide, iodide, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड आर गैस। ये जब गैस होते हैं तो ये एसिड नहीं हम कंसीडर करते हैं, ये इसका एक्वियस सॉल्यूशन ही एसिडिक है। एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक, अदरवाइज दे आर गैस। एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है, खास ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोब्रोमाइड गैस, हाइड्रो आयोडाइड गैस, दे आर नॉट एसिड, देयर aqueous solution are acid। HF is a liquid, so you can consider acid। रीजन दिया मैंने कि हाइड्रोजन फ्लोराइड उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, और ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ F, उसका जो बॉन्ड है HF बॉन्ड वो बड़ा स्मॉल है, उसको ब्रेक इजीली नहीं होता है, तो उसका भी अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है तो इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड आता है, इसमें ऐसा नहीं है। लास्ट एंड नंबर 5, ऑक्सो एसिड्स, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, आगे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वाइल अदर हेलोजेंस, आप वो टेबल देखो तो उसमें -1 +1 +3 +5 +7 सब आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। फ्लोरीन में ओनली -1, तो ये एनोमलस बिहेवियर है। इसमें भी रीज़न आप देना चाहो तो दे सकते हो कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ this lecture, and in next lecture we will discuss about chemical periodicity of group number 17. Thank you friends. If you have any question then call me.